Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Student, as you know that in the previous class we have started a new lesson, new unit number 5, named Historical and Cultural Places of Pakistan. Open page number 97. We have started the reading text, reading comprehension, Pakistan, home to ancient civilization. In the first paragraph, how many paragraphs we have already read or explained? 3 paragraph we have done, alhamdulillah. And the first paragraph, it was told about the Pakistan is a land that is the home of the greatest civilization. यानी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी civilization है world की, that is called the Indus Valley civilization. And other civilization can also be seen here in Pakistan. For to visit these sites, to visit these historical places, the writer ने कितने days का trip ले रहे हैं और किसके ज़रिए से ले रहे हैं? 2 days helicopter trip ले रहे हैं across the Pakistan to learn about to land at these sites and look at them briefly and learn some basic facts about them. Okay, इन sites के बारे में वहाँ पर उतरेंगे, उसको देखेंगे और उसके बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे. उसके बाद जो सबसे फर्स्ट साइट इट वॉज बम्बोर, इट इज़ इन सिंध. एंड ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? इट वॉज थर्टा डिस्ट्रिक्ट. एंड द सिटी इज़ एंड इट इज़ अबाउट 65 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कराची है. और ये जो सिटी था इट वाज बिल्ड इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी का मैंने आपको बताया था, बिफोर क्रिस्ट होता है. एंड वाज ओनली अबेंडेंट मीन्स होता है खाली कर देना. आफ्टर द 13th सेंचुरी में ये खाली हो गया था, ख़त्म हो गया था. व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न क्या था कि इसमें जो रिवर इंडस है उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया था? चेंज कर लिया था. इसके अलावा यहाँ पर हाउ मेनी पीरियड्स हैव बीन शोन इन दिस साइड? 3 पीरियड्स हैं, जिसमें एक जो आपके पास जो है स्टोन टाइप बिल्डिंग मिलेगी हुई जो अर्लियर स्टेज को फेस को शो करती है. देन वी हैव अ शिवा टेम्पल जिसमें वो शो द हिंदू पीरियड. एंड देयर इज़ अ मॉस्क विद 727 AD रिटन ऑन इट. और ये जो है सबसे बेस्ट प्रिजर्व है इस रीजन का. नाउ वी आर स्टार्टिंग रीडिंग ऑफ फर्दर. Having looked at Bambor, let's get back on our helicopter and go to our next stop, which is Mohenjo-daro. It is in the province of Sindh and is located in the Larkana district, around 28 kilometers from the town of Larkana. It was one of the largest settlements of the ancient Indus Valley civilization and one of the world's earliest major urban settlement. Mohenjo-daro was built in the 26th century BC and was abandoned in the 19th century BC as the Indus Valley civilization lost power. Mohenjo-daro was a highly organized and well-planned city with proper planned streets. The city had a central marketplace with a large central wells and other smaller wells. Wastewater from the houses went into covered drains that lined the major streets. One can stay at Mohenjo-daro for days and yet not learn enough about it. But it is now time to go to Nindawari, which is in the Kalar district of Balochistan. It is located some 240 kilometers northwest of Karachi in the Arnaj Valley on the right bank of the Kud River. Nindawari is a site of the prehistoric Kuli culture of Balochistan. It dates back to 3200 BC and was probably abandoned in 2500 BC because the land rose up, due to which it got cut off from its water source, the Kud River. The Nindawari settlement was built on a flat rock. It had a central square platform which was surrounded by a building on one side. The central mound near the platform was 82 feet, 25 meters high, and consisted of a large stone. The top of the mound could be reached by a staircase from the platform. So I finished the reading here till here. Then I am going to explain you the other side, that is Mohenjo-daro. And इसके अलावा जो हमारी दूसरी साइड है जो हम आज के लेसन का पार्ट है, it is Nindawari, that is in Balochistan. So let's come here again on page number 97. Having looked at Bambor,
आपने अभी कौन सी साइट विजिट की थी? एज आई टोल्ड यू कि बम्बोर इट इज़ ऑल्सो इन सिंध। अब हम दे आर गोइंग बैक टू द हेलीकॉप्टर और जो है वो अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ यानी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ यानी अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जिसका क्या नेम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लेस? मोइंजोदड़ो। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इट इज़ नॉट मैंशन हियर कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ फॉर योर ताकि आपको नॉलेज मिले। मोइंजोदड़ो एक्चुअली इट्स अ नेम, इसकी मीनिंग है, आप लिख लीजिए, काइंडली नोट डाउन, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, उर्दू में इसको कहते हैं मुर्दों का टीला। अच्छा, इसके क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कहते हैं यहाँ की लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, अर्थक्वेक आ गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है वो जानी नुकसान हुआ था और द होल सिटी चेंज इनटू अ ग्रेवयार्ड। यहाँ ये किस प्रोविंस में है? इट इज़ इन प्रोविंस ऑफ सिंध। ये भी जो है साइट है मोइंजोदड़ो, इट इज़ ऑल्सो इन सिंध स्टूडेंट्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन द लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। एज ये आपको हर साइट में आपको डिस्ट्रिक्ट भी बताएंगे और प्रोविंस भी बताएंगे, ये मैं आपको पहले ही बात बता चुकी हूँ। तो कीप रिमेंबर दिस थिंग, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज़ ऑल्सो इन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। और ये कितने किलोमीटर है, किस सिटी के जो है वो नियरेस्ट है? ये लाड़काना के है कितने किलोमीटर? 28 किलोमीटर जो है लाड़काना से दूर है। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर एक आपके लिए एक वर्ड है सेटलमेंट। सेटलमेंट किसे कहते हैं? सेटलमेंट कहते हैं कम्युनिटी को, कॉलोनी को कहते हैं, जहाँ पर आप आबादी को कहते हैं, जहाँ पर लोग जो है वो एक ही कल्चर के, एक ही रिलीजन के भी लोग जो है वो एक जगह रहते हैं, तो दिस एक सेटलमेंट बन जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी सेटलमेंट थी। कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन में और भी सेटलमेंट थी, लेकिन ये सबसे बड़ी थी, लार्जेस्ट थी। एंड ये वर्ल्ड की भी जो है आपको स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड की अर्लीस्ट मेजर अर्बन सेटलमेंट थी और दुनिया की ये सबसे पहली। और मेजर मीन्स होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजर? बड़ी। और अर्बन मीन्स होता है सिटी लाइक जो जगहें होती हैं जिनको शहरी जगहें कहते हैं, आबादी थी ये, यानी वर्ल्ड की भी ये सबसे बड़ी शहरी आबादी थी। सो यानी इंडस वैली की तो ये समझ लें आप सबसे लार्जेस्ट आबादी थी, लार्जेस्ट सेटलमेंट था, लेकिन वर्ल्ड की भी ये सबसे पहली और बड़ी शहरी आबादी थी। नाउ प्रोसीड to the next sentence, मोइंजोदड़ो was built in the, अब ये कब बिल्ड हुआ था? It was built in 26th century BC में हुआ था and was abandoned 19th century BC में। ये क्या हो गया था? ये खाली हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन लॉस पावर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या हो गई थी? उसने जो है वो वहाँ की तहजीब जो है वो क्या हो गई थी? आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गई थी। रीजंस होते हैं, या तो वाटर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, या लोग कहीं और दूसरी तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये आबादी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गई थी। मोइंजोदड़ो वॉज अ हाईली ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान सिटी। अच्छा, ये इतने साल पहले भी जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज था, मुनज़्ज़म था, वेल प्लान था, यानी केयरफुली डिज़ाइन सिटी था विद अ प्रॉपर, यानी ऐसे नहीं था कि हर जगह उन्होंने घर बना दिए, बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रीट थी, एक यानी बहुत ही तरतीब से ये जगह बनी हुई थी। इसी वजह से इसको मेजर अर्बन सेटलमेंट का नाम दिया गया है। द सिटी, ऐसा यहाँ पर क्या था? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग? इट हैड, बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। इफ़ यू, अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है बुक्स पढ़िए इससे रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो मेन थिंग्स हैं, मेन कंपोनेंट है, उसमें उसकी मार्केट प्लेस आती है, सेंट्रल मार्केट प्लेस थी, और इसमें वहाँ पर लार्जर सेंट्रल वेल था, यानी कुआँ था जहाँ से फ्रॉम वेयर द पीपल ऑफ दिस एरिया गेट द वाटर। और इसके अलावा जो है वो स्मॉलर वेल्स भी थे, यानी छोटे छोटे और भी कुएँ थे। अच्छा, व्हाट हैपन विद द वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर यानी जो गंदा पानी होता था घरों में से जो निकलता था यूज़ हुआ, तो वो किस तरह जो है वो कहाँ जाता था? वेंट इनटू कवर्ड ड्रेन। देखिए, इतने साल पहले भी जो है वहाँ पर ड्रेन्स का कॉन्सेप्ट था, एंड दे ऑल आर कवर्ड, दे आर नॉट अनकवर्ड। ये अनकवर्ड नहीं थी, बल्कि दे वर कवर्ड थी। और यहाँ किस तरह गुजर रही थी? ऐसे नहीं कि जिग-जैग की फॉर्म में हर जगह से जो है वो ड्रेन्स गुजर रही है, नो, लाइन हुई हुई थी, एक लाइन में थी, मेजर स्ट्रीट्स के साथ साथ थी। सो ये आप इसकी ऑर्गेनाइज्ड होने की ये निशानी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की बहुत सारी फाइंडिंग्स भी हैं। हेड ऑफ द बुल, जहाँ पर किसी कहते हैं, स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल भी है। बहुत सारी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ इसके म्यूज़ियम में एग्जिबिट की गई हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। वन कैन स्टे एट मोइंजोदड़ो फॉर डेज। यहाँ इतनी सारी चीज़ें थे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और हम जब भी, मेरे ख्याल में, येट नॉट लर्न इनफ, हम बहुत सारा नहीं सीख सकेंगे अबाउट इट।
But now we are moving to the next destination, that is Nindoveri, which is in the Kalar district. कहाँ पर है? As I told you, this is very important to learn to keep remember the district. ये कलात में है, द प्रोविंसेस बलोचिस्तान, एंड इट इज़ लोकेटेड 240 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ कराची. ये कराची के 240 किलोमीटर्स अवे है, नॉर्थ वेस्ट में है. और कहाँ पर है? जो जहाँ पर ये इसकी एग्जिस्टेंस है, ये है ऑर्नाच वैली में है. और राइट बैंक ये किसके किनारे पे, कौन से दरिया के किनारे पे? कुड रिवर के किनारे पे. ठीक है, तो यहाँ पर वाटर सोर्स भी इसका बता दिया कि कुड रिवर है. निंदोवरी इज़ अ साइट ऑफ द प्री हिस्टोरिक कुली कल्चर ऑफ बलूचिस्तान. अब यहाँ पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक? प्री हिस्टोरिक को इस तरह समझ लीजिए, उर्दू में बोलते हैं तो क़ब्ल अस तारीख, यानी जब से तारीख जो है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हुई है, यानी जब से जो है हिस्ट्री को लिखना शुरू किया गया है, उससे पहले की जो है वो बात है, यानी बिफोर द टाइम्स इन हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड. और जो है ये कौन सा कल्चर को रिप्रेजेंट करता है? ये डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो उसमें इसका एक का नाम है कुली कल्चर, यही बलूचिस्तान का ही है. और कितने ईयर्स बैक ये हुआ था, ये कितने डेवलप हुआ था, बिल्ट हुआ था 3200 BC में, और खाली कब हो गया था? 2500 BC में. बिकॉज क्या रीज़न था इसका? रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि जो यहाँ की लैंड है वो रोज़अप हो गई थी, उठ गई थी. किस वजह से उड़ गई थी? ड्यू टू विच इट गॉट कट ऑफ फ्रॉम इट्स वाटर सोर्स द कुड रिवर. जब आपको पता है कि लैंड्स में जो कुछ अरसे के बाद, कुछ ईयर्स के बाद चेंजेस आती रहती हैं, उसकी प्लेट्स चेंज होती रहती हैं, तो अपने इसने की वजह से वो अपने वाटर सोर्स की तरफ से जो है वो कट किया था, जिसका नाम क्या था? कुड रिवर. द निंदोवरी सेटलमेंट वॉज बिल्ट ऑन अ फ्लैट रॉक. अच्छा, ये जो सेटलमेंट है ये किसी पहाड़ी इलाके पे नहीं बनी हुई, ये बिल्कुल प्लेन पे बनी हुई है, प्लेन है और फ्लैट रॉक पे है. और इसके बीच में जो है वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, एक चकोर सा जो है वो क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है. उसके अलावा जो है विच वॉज सराउंडेड बाय बिल्डिंग ऑन वन साइड. और ये प्लेटफॉर्म जो है वो चारों तरफ बिल्डिंग से नहीं घिरा हुआ, इसके एक साइड पे जो है यू कैन सी द बिल्डिंग्स. ओके, इसके एक साइड पे आप जो है वो बिल्डिंग्स देखेंगे. इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल माउंट है नियर द प्लेटफॉर्म. नियर द प्लेटफॉर्म एक सेंट्रल एक टीला है, बहुत बड़ा सा, बहुत ऊंचा सा टीला है, जिसकी हाइट जो है वो 82 फीट है, यानी 25 मीटर हाई है. और वो किससे बना हुआ है? वो लार्ज स्टोन से बना हुआ है, यानी बड़े बड़े पत्थरों से पहले जो है वो बिल्डिंग्स बनती थी. एंड बिकॉज इट वॉज सो लार्ज एंड इट वॉज सो हाई, तो इसके तक पहुँचने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा. सो हाउ कैन वी रीच एट द टॉप ऑफ द माउंट? कैसे पहुँच सकते हैं? द टॉप ऑफ द माउंट कुड बी रीच बाय अ स्टेयरकेस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, यानी सीढ़ियों के ज़रिए से इस माउंट के टॉप तक आप पहुँच सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म से जो है वो इसके टॉप तक आप पहुँच सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट, okay students, I think this is quite enough for today because there are so many things to remember. आप अच्छे तरीके से, because it's very important chapter regarding exams के लिहाज से भी important है, historical chapter है. if you take interest in history तो आप इसमें और मज़ीद जो है you can आप read कर सकते हैं different places, different sources से. इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. you can see the pictures of these places. गूगल पे आप सर्च कीजिए तो आपको बहुत सारी images मिलेंगी. that will be quite interesting. तो आप के लिए what is the task for today? you will have to read out this lesson till here, और उसके मीनिंग्स जो आपको लगे डिफ़िकल्ट लगे, ट्राई टू लुक अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी. न्यू वर्ड्स को एक्सप्लोर कीजिए, लुकअप कीजिए उसकी मीनिंग डिक्शनरी में, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स. ओके, इंशाल्लाह ताला वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.